Welcome to my YouTube channel IIT Physics Academy by Suren sir. My dear students, today we will do the 20 most important MCQ of chapter number 10 Gravitation of Standard 9 Science subject. Everyone will try to give the correct answers of these questions in comment box. Let's start question number 1. The value of capital G was found out by dot dot. Option A Newton, option number B Cavendish, option number C Faraday, option number D none of these. To give the correct answers, everyone know very well what is correct answers. Okay, so correct answers of question number 1 is option B Cavendish. This is the correct answer. Now question number 2. Question number 2 is very easy. The unit of the acceleration due to gravity is dot dot. Option A meter per second, option B meter per second square, option C meter second inverse, and option number D is none of these. Think about first what is correct answers of question number 2, acceleration due to gravity. Okay, so answer of question number 2 is correct answers of question number 2 is option B meter per second square. Okay, so this is the correct answer. You can say it. So V is the correct answer, meter per second square. Now question number 3. Value of gravitational constant is dash Newton meter square per coulomb की power -2. Option A 6.67 10 to raise -11, option B 6.67 into 10 to raise -10, and C is 6.67 into 10 to raise -9, and in option number D is none of these. So this is very easy. This is the value of capital G, or this option is option number A 6.67 into 10 to raise -7 is 10 to raise -11 is the correct answer. So this is value of gravitational constant G equal to, you can say, 6.67 into 10 to raise -11. This is the correct answers. Okay, now question number 4. For question number 4 is SI unit of the pressure is dot dot. Newton, Cavendish, Pascal, none of these. Okay, if you know very well unit of the pressure unit is this is the force upon area. Area will be you can say A, like this. If you write the unit of this, तो force की unit होती है Newton and area की value होती है meter square. Okay, तो in this way you know very well this is the Newton per meter square. This is the unit of the pressure, but one more unit are there because Newton per meter square is not given that. So one more unit is of the pressure is Pascal. Pascal have given to this unit. So this name Pascal through we can say this is the correct answers of C is Pascal. Pascal is the unit of the pressure. Now question number 5th. Unit of relative density is, you know very well relative density unit क्या है. कौन बता सकता है? Anyone can say, because relative density have a no unit. तो correct answer is we can say option number C is the correct answer, because kilogram meter square is also wrong, because this is the unit of density but not unit of relative density. Okay, so correct answer is C, no unit is there. Okay, next question number 6. Weight of an object on the surface of the moon is, everyone know very well कि weight is mass is the fixed, but weight is changeable for different place, because gravity is different in different place. We know very well gravity of the earth is 9.8 and then gravity of the moon is 1/6 time of that. So we can say if we want to find the weight of the object on the surface of moon is, so we know very well this is the 1/6 time of the weight of object on the surface of the earth. तो this C is the correct answers of this. तो हम कह सकते हैं कि C ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द
सरफेस होगा उसका 1/6 टाइम ऑन द मून होगा। तो दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the distance between the object decreases then the gravitational force between the object will be। everyone know gravitational force, what is formula of gravitational force? Gravitational force we can say F equal to capital G m1 m2 by r square, okay, but we want to find here given that the distance between the object is decreases, then what is value of this? So F dash we can write capital G m1 m2 and r dash square. If in other word we can say F dash is inversely proportional to r square। अब हम कह सकते हैं कि जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर R कम होगा तो F बढ़ेगा। इफ़ R इज इंक्रीजिंग, इफ़ R वैल्यू विल इंक्रीज तो फोर्स विल बी डिक्रीज। इफ़ R इज डिक्रीज R विल डिक्रीज, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। तो इन क्वेश्चन गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, तो आंसर विल बी व्हाट, force will increasing because this is inversely proportional। तो correct answers of this question is option number B is correct। यहाँ पे जो हमारा V है आंसर, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब R कम होगा तो F बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in the polar region value of acceleration due to the gravity, same formula you know, G इक्वल टू कैपिटल G m अपान आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे बता रहे हैं कि वी वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन ए पोलर रीजन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोलर रीजन, तो ये यहाँ पे वी कैन से G इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर R बढ़ेगा तो G कम होगा, R विल डिक्रीज तो G विल इंक्रीज। इन पोलर रीजन हैबिट R इज लेस देन द इक्वेटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन ए पोलर रीजन ग्रेविटी इज मोर देन द इक्वेटर। तो वी आंसर इज करेक्ट हियर गिवन दैट मैनी ऑप्शंस। ए हैव गिवन इन ए सेम एट द इक्वेटर, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके, दिस इज रॉन्ग आंसर। एंड सेकंड इज मोर देन दैट इक्वेटर, यस दिस इज करेक्ट आंसर, एंड B is the correct answer, and less than this is wrong, and D is equal to 0, this is also. So correct answer is B is more than that the equator. Question number next, question number 9, the gravitational force between two objects is capital F. If the masses of the both objects are halved without changing the distance between them, what then gravitational force would become? तो हमें बताना फर्स्ट टाइम में जो वी यू नो वेरी वेल, फार्मूला ऑफ F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसका मास है दिस विल बी हाफ ऑफ दैट, मतलब दोनों का मास बदल गया है। इस जो मास है उसका क्या कर दिया है, हाफ कर दिया गया है, जबकि उसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या होगी, तो F डैश हम लिख सकते हैं, फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे m1 है वहाँ पे क्या लिखेंगे, m1/2, जहाँ पे m2 है प्लेस ऑफ m2 वी विल राइट दिस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि m1 m2 m3 तो वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम लिखें तो इन दिस वे वी कैन राइट कि F इक्वल टू F डैश इक्वल टू वो G तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ F। किसकी वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो F डैश है अगर उसके मास को चेंज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम होगा फोर्स। तो ये वैल्यू है किसकी, F की है। तो वी कैन राइट F डैश इक्वल टू F/4, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई है तो पहला ये फर्स्ट इज गिवन दैट, तो A इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन्स F/4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. डॉट डॉट इज द नीडेड टू चेंज द स्पीड और दिस डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है प्रेशर, ऑप्शन डी इज फोर्स. अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, डायरेक्शन बदलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? इफ़ वी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन दिस विल बी पॉसिबल. तो यहाँ पे हमें वी हैव नीड, क्या हमें ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है. तो फोर्स इज द नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो आंसर डी इज करेक्ट. फोर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 11 है द फोर्स द कॉज दिस द एक्सेलरेशन एंड कीप्स टू द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर. और सेंटर की डायरेक्शन में कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है. दिस इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स. ओके, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज द करेक्ट आंसर. ग्रेविटेशनल भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा. तो बी इज द करेक्ट आंसर. सेंटीपिटल फोर्स इज correct answer of question number 11. Now question number 12, the force is along to the line joining the center of two objects. तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेविटेशनल, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इट इज़ कंपल्सरी दे हैव ए मास, और जो मास है विच हैव ए मास, तो विच फोर्स इज अप्लाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन बोथ. तो हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पे एक ही फोर्स लगता है. कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the orbit of a planet is dashed with the sun at the end of the focus. फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्बिट ऑफ प्लानेट इज डैश विद द सन एट द वन ऑफ द फोकी. तो सर्कुलर पाथ में कोई भी प्लानेट सन के चारों तरफ मूव नहीं करता, तो सर्कुलर इज द रॉन्ग आंसर. ये तो पक्का हो गया. सेकंड इज द एलिप्टिकल है, थर्ड इज रेक्टिलिनियर है, फोर्थ नन ऑफ दिस है. तो अगर कोई भी सन, आपने देखा होगा कि अगर सन यहाँ पे है सपोज दैट ऑन सेंटर, तो कोई भी प्लैनेट होगा तो लाइक एज दिस विल बी रोटेट, जैसे अर्थ ही कर ले लेते हैं. तो ये इलेप्टिकल पाथ होता है, नॉट ये सर्कुलर. तो सर्कुलर तो बिल्कुल गलत है, रेक्टिलिनियर भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट. इलेप्टिकल पाथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, if there were no centripetal force are there, the moon would the pursues ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन. तो क्या होगा? सर्कुलर होगा, एलिप्टिकल होगा, स्ट्रेट होगा, नन ऑफ दिस होगा. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अप्लाइड तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो एलिप्टिकल मोशन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हियर अर्थ इज देयर एंड देन दिस इज रोटेटिंग, दिस इज द मून. तो क्या होगा? अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो हो जाए यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन स्ट्रेट लाइन. वो जिस पॉइंट पे रहेगा उससे सीधे मूव करने लगेगा. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज स्ट्रेट लाइन विल बी देयर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. 15 का आंसर क्या है? पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय नंबर 1 ग्रेविटी, नंबर 2 विंड, नंबर सी जो है क्लाउड है, नंबर नेक्स्ट ऑप्शन डी है अर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या बताएंगे? कोई भी अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी है. ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर. तो 15 का करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेविटी है, जो इस ऑप्शन नंबर ए को आइडेंटिफाई कर रही है. तो आंसर ऑफ 15, करेक्ट आंसर ऑफ 15 इज ए ग्रेविटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्स ऑफ attraction between two unit point masses separated by a unit distance is called. ध्यान से सुनिए कि we have a two masses which have a unit point masses. तो कहने का मतलब m1 and m2 both are 1 kg and then separated by the unit distance means d will be also 1. तो what is the value of gravitation? which force are there? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो you know F इक्वल टू क्या होता है? g m1 m2 बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी लेते हैं, ठीक है.
if he are given that m1 equal to 1 and m2 equal to 1 and d equal to 1, तो what we can get, तो हम लिख सकते हैं कि m1 की जगह पे 1, d1 की जगह पे 1, सब पे हम 1 लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगी। ओके, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर, तो कहने का मतलब 1 1 1 हो जाएगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, f इक्वल टू कैपिटल G के बराबर होगी। और कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट्स मासेस सेपरेटेड बाय द यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड F इक्वल टू कैपिटल G होगा। और कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सो D इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है। अगर जी का वैल्यू हम कहते हैं, जी को अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो वी नो वेरिएबल, सबको पता है जी इक्वल टू कैपिटल G m/r² होता है। तो ये किस पे जी इज़ द कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द अर्थ है, शेप एंड साइज है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, आर नहीं दिया गया है। तो ओनली मास पे तो डिपेंडेंसी होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मास ऑफ द बॉडी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है। व्हेन ए मैंगो फॉल्स फ्रॉम ए मैंगो ट्री देन, अगर मैंगो ट्री से मैंगो फॉल होता है तो कंडीशन बताना है क्या होता है। द ओनली अर्थ अट्रैक्ट टू मैंगो, द मैंगो अट्रैक्ट द अर्थ एंड सी इज द बोथ मैंगो एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर एंड डी इज द बोथ आर मैंगो एंड अर्थ रिपेल टू ईच अदर। अब बात तो ये होती है अगर टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर तो अट्रैक्शन फोर्स विल बी देयर, ये तो करेक्ट है। अभी यहाँ पे ये होता है कि मास जो हमारा मैंगो है वो भी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और अर्थ भी लगाती है, तो दोनों का अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन मैंगो जो है अर्थ की तरफ में अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इसका मास कम होता है और अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से मैंगो जो है अट्रैक्ट करती है अर्थ को। इसी तरह से जैसे अर्थ और मून की बात करें तो मून क्या करता है, उसका दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स होता है और वो एक ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में काम करता है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, हमें ये बताना है कि मैंगो भी अट्रैक्ट करता है और अर्थ भी अट्रैक्ट करती है। तो जो इसमें आंसर दिया गया है वो करेक्ट आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं, बी नहीं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द रॉन्ग आंसर। बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि मैंगो भी अट्रैक्ट करता है और अर्थ भी अट्रैक्ट करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ डी गेट द बिगर बाय द फैक्टर्स ऑफ डी, इफ़ डी गेट द बिगर बाय ए फैक्टर ऑफ 6 तो एफ बिकम हाउ मनी टाइम स्मॉलर। तो कितना हो जाएगा, अगर हम डी को बढ़ा दें 6 टाइम कर दें तो क्या हो जाएगा उसकी वजह, जैसे यू नो वेरिएबल कि अगर यू नो वेरिएबल एफ इक्वल टू, अभी हमने पढ़ते हुए आए हैं, बहुत पहले से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो हमारा एफ होता है वो क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, या फिर डी स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं डी स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस है। तो अगर ये 6 टाइम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम वी कैन राइट एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई 6d स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, 6 6 36 होता है, तो जो हमारा एफ डैश होगा, हम एफ डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश वी कैन राइट, यहाँ पे एफ डैश लिख सकते हैं 6 6 36 होगा तो 1/36 ये होगा, एंड जो जी m1 m2 तो रहेगा ही बाई डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या है, ये एफ है, तो वी कैन से दिस इज़ द हाउ मनी टाइम्स, तो ये एफ का कितने टाइम्स होगा, एफ डैश इक्वल टू 1/36 एफ। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, हम लिख सकते हैं कि बेसिस ऑफ एफ डैश जो होगा 1/36 एफ होगा, ठीक है। एफ से वो इतना बाय वैल्यू से आएगी तो इतनी हाउ मनी टाइम्स, दिस विल बी 1/36 टाइम दे। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके,
Now question number 20 is very easy. Everyone can give the correct answers of this. Value of acceleration due to gravity on the surface of the earth is dot dot meter स्क्वायर. ओके, बट यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया. ओके, तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द क्वेश्चन. तो ऑप्शन इज 9.8, 0, 20. नन ऑफ दिस. नो करेक्ट आंसर इज ए 9.8 मीटर पर सेकंड. हमें पता है कि g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज कौन सा है? ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर्स. ओके, तो इन दिस वे वी हैव completed question number 1 to 20. I think you will revise this question one time more, and you will practice more, and you can get the good result. Okay, thank you.